السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ شو کا آغاز کر رہے ہیں محفل مشاعرہ سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید میاں، بہت شکریہ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپنے شو میں قدم رنجا ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ جناب والا، آپ صرف نام کے دھڑکن نہیں ہیں، ہمارے اس شو کی بھی دھڑکن ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی، جب ہم قدم رنجا ہوتے ہیں تو ہمارا مرال ہمالیہ کو چھونے لگتا ہے۔ کیا خوبصورت۔ ایک دفعہ تو اتنا اونچا اٹھ گئے نمونیے کی شکایت ہو گئی۔ جی ہاں جی ہاں، موصوف اڑ بھی لیتے ہیں نا، کبھی کبھی زور سے پھڑپھڑاتے ہیں کہ ہمالیہ کی چوٹی کو بھی تجاوز کر جاتے ہیں۔ تیری اڑان پہ ہمیں گمان ہے، واہ، تیری اڑان پہ ہمیں گمان ہے، جیسے قورمہ اور بسا ہوا نان ہے۔ آنکھ میں آنسو جم گئے سارے، آنکھ میں آنسو جم گئے سارے، لڈو کرارے لڈو کرارے۔ کیا کہنے آج تو ہر شعر میں کھانے پینے کا ذکر ہو رہا ہے۔ معافی چاہتے ہیں جنید میاں، ایسے بدذوق شخص کو ساتھ لے آئے جو شاعری کی بجائے خوراک کو داد دے رہے ہیں۔ نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں، خوراک کے بغیر بھی ہم آپ کو شعر سنا سکتے ہیں۔ کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا، دکھ سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا، آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا، آنسو کی طرح۔ تو چھوڑ رہا ہے تو اس میں تیری خطا کیا، ہر شخص میرا ساتھ نبھا بھی نہیں سکتا۔ دیکھتے دیکھتے تو پلیٹ ختم ہو جاتی ہے، آپ کا ساتھ نبھانا واقعی کون ساتھ نبھائے؟ تو بات ہو رہی تھی جنید میاں کہ بھائی اب ہم چند دوست ہی تو رہ گئے ہیں جو باذوق ہے الحمدللہ، اور آپس میں اختلافات نہیں رکھتے، ورنہ آج کل جو نئے شعراء اٹھ رہے ہیں وہ تو آپس میں ایسے چلتے ہیں جیسے پھوڑ عورت کے توے پہ چپاتی۔ بھائی ہم میں تو اس قدر سلوک اور محبت ہوتی تھی، یقین مانیے جب کہیں جاتے تھے تو جم کٹے بنا کے جاتے تھے، اور ایک پڑھتا تھا ایک سناتا تھا تو پورا غول کا غول اس قدر شدت سے داد دیتا تھا کہ وہاں محفل میں بیٹھا ہر شخص داد دینے پہ مجبور ہو جاتا۔ وہ شاعروں کا غول کم اور بھیڑیوں کا غول زیادہ لگتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ آپ نے ہمیں سراہا ہے یا بے عزت کیا ہے؟ آج کل کے شعراء کا تو یہ حال ہے، نوجوان شعراء جو ہے اتنا نام حاصل کر لیا، نام کما لیا، اس کے باوجود ایک دوسرے کے خلاف گروپنگ، لابنگ، سازشیں سوشل میڈیا پہ۔ بھائی اس لیے کہ ادب سے وہ لگاؤ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کسی استاد کا ہاتھ نہ پکڑیں۔ کیا خوبصورت۔ اور ایسے بے استاد لوگ ہیں، اگر ان کی اصلاح کرنے کے لیے کبھی کوئی جرت کر بیٹھے تو صاف کہہ دیتے ہیں بھائی بس آپ اپنا کام کیجئے، ہمارے لیے سوشل میڈیا ہی کافی۔ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا کلام پھینک کے اوپر کہیں سے ریکارڈڈ داد لے کے وہ پھینک دیتے ہیں، تو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے محفل لوٹ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جنید میاں۔ اصلاح لینی چاہیے اور اصلاح دینی چاہیے۔ کیا خوبصورت بات۔ کیا قضیہ چھیڑے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شاعرہ موصوفہ کافی خوش شکل تھیں، اچھا، پھر مقبول بھی بہت ہوں گی۔ ظاہر ہے آج کل تو جو خوش شکل ہے وہی مقبول ہے، ورنہ دیکھیے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے کیسا شورا آفاق مصرع نہیں ہوا ان سے، مگر صبح کھا لیتے ہیں تو دوپہر کی فکر ہوتی ہے، دوپہر کو کھا لیتے ہیں تو شام کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ بھائی آج کل شکل ہی تو چل رہی ہے، وہ بے شک گانا بجانا ہو یا شعر و ادب ہو۔ تو بتا رہے تھے کہ ہم نے اس خوش شکل موصوفہ سے کہا کہ بھائی شاعری آپ کی اچھی ہے مگر آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے، تو جٹ سے بولی کہ آپ ہماری اصلاح رہنے دیجئے، اپنے کردار کی اصلاح کیجئے۔ حالانکہ یقین مانیے ہم نے نہ کوئی ناشائستہ گفتگو کی اور نہ ہی کوئی ناگفتہ بے حرکت کی، مگر دیکھیے آج کل
नया जो टैलेंट आ रहा है वो किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं। में प्रॉब्लम ये है धड़कन मियां कि जो कंट्रोवर्सी होती है ना वो पॉपुलैरिटी को जन्म देती है। ये भी तो एक मसला है ना, जानबूझ के कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती है ताकि मकबूलियत का जरिया बन सके। मगर जुनैद मियां हम तो साफ कह देते हैं कि हम ऐसे ऊंचे असूलों से दूर रहे। धड़कन मियाँ उधर मुंह कर लिया है, हमसे उछान आती है। उछान। अरे देखिए अपना शमीम मियाँ। शमीम मियां, हम तो आपके ऐसे मद्दार ठहरे कि हम आपको कंधों पे उठा उठा के मुशायरों में लेके जाते रहे हैं। जी हाँ, जी हम हाँ। तो आपके ऐसे खादम हैं। तो बात ये है जुनैद मियां कि अगर इस्लाह की नहीं जाएगी और इस्लाह ली नहीं जाएगी तो फिर अदब तो आहिस्ता आहिस्ता रूबा जवाल हो जाएगा। अच्छा ही। आप रूबा जवाल कह रहे हैं? अदब की वो हालत हो जाएगी जो टायर के नीचे आकर डड्डू की हो जाती है। अच्छा ही। आप तो अदब से दिल चढ़ा रहे हैं। अब तो ये हालत है जुनैद मियाँ, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे किसी नौखेज शायर ने हमारा मिसरा अपने नाम से जड़ दिया। हमने नीचे कमेंट्स में लिख दिया, भाई कुछ खुदा का खौफ करो, ये तो हमारा मिसरा है, बस पूछिए कुछ ना। उसके फैंस ने हमारी वो दुर्गत बनाई कि बता नहीं सकते। बताएं थोड़ा सा कैसे क्या क्या तो दुर्गत सोशल मीडिया से बाहर निकल आया और इनको टांग से पकड़ के कंप्यूटर में घुस गया। 15 मिनट बाद वही मियां कंप्यूटर से ऐसे बाहर आए जैसे नोटिफिकेशन आने पे बेल नहीं आती। क्या जरूरत थी बाहर आने की? रह लेते 2 महीने, हालात तो खराब थे। अच्छा धड़कन मियां, इन एतराजात को छोड़िए, आप मुशायरे के लिए आए हैं, हमने आपको जहमत दी है, जाहिर है एक शायर के तौर पे तो फिर कलाम तो होना चाहिए ना सर। यानी सिर्फ कलाम सुना के चले जाएं तो गिले शिकवे जाके कहाँ करें? गिले शिकवे हो गए। भाई आप ही तो हैं जो हमारी सुन लेते हैं। क्या बात। वरना यकीन कीजिए अब तो घर वाले भी हमारी नहीं सुनते। अभी चंद दिन पहले आपकी भाभी से कहा कि ताजा कलाम सुनाऊं, कहने लगी रहने दीजिए, पहली तारीख चढ़ गई है, ताजा खर्चा दीजिए। हम तो आपके गिले शिकवे सुनने के लिए हाजिर हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स आपसे प्यार करते हैं, वो आपका कलाम सुनना चाहते हैं। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अर्ज किया है जी। महबूबा बन के रोज मंगाऊंगा इजी लोड। महबूबा बन के रोज मंगाऊंगा इजी लोड। ऐसा सभी रकीबों से खेलूंगा खेल में। सद शुक्र फिर किताबों का खर्चा है बच गया। फिर से वही रिजल्ट है, फिर से हूं फेल में। उसने कहा था कानों में रस घोल दीजिए। उसने कहा था कानों में रस घोल दीजिए। आया जलेबियों का हूं शीरा उंडेल में। बिजली बनेगी इससे ये कहता है वापडा। बिजली बनेगी इससे ये कहता है वापडा। बिल को बढ़ा के कौम का निकालूंगा तेल में। बच्चे हैं मेरे 8 और 0 है आमदन। वाह जबरदस्त। इतना काफी नहीं? 8 बच्चों पे इतना काफी नहीं। बच्चे हैं मेरे 8, कर लो जो करना है। बच्चे हैं मेरे 8 और 0 है आमदन। बच्चे हैं मेरे 8 और 0 है आमदन। लगता है इस औलाद की लगा दूंगा सेल में। वाह वाह वाह। बेगम है देती गालियां मैं दूं हूं बद्दुआ। बेगम है देती गालियां मैं दूं हूं बद्दुआ। हर रोज खेलता हूं ये दिल सोज खेल में। वाह। कहते हैं तुम उड़ाते हो मुफ्ते में रोटियां, दांतों से खींचता हूं सर्कस में रेल में। हमसाए के तोतों का जब खाता हूँ बाजरा, उसकी सजा में जाता हूँ हर बार जेल में। यार शायरी में भी आप लोगों के दुखड़े नजर आते हैं, कोई इश्क और मोहब्बत की बातें नहीं नजर आती। जुनैद मियां, इस फाका मस्ती और तंग दस्ती के दौर में
भाई अब और क्या निकलेगा शायर के अंदर से? अब कहाँ वो इश्क व मस्ती के किस्से, कहाँ वो तितलियों के रंग, कहाँ वो बागो बहार के किस्से, वो गए। अब तो यही कुछ है हमारे पास। चले यही कुछ ही आने दीजिए। भूत सर पे सवार थोड़ी है, भूत सर पे सवार थोड़ी है, इश्क का ये बुखार थोड़ी है, घर में दुमदार सा सितारा है, घर में दुमदार सा सितारा है, शोहरे नामदार थोड़ी है। अहलिया की सिफात क्या लिखूं, अहलिया की सिफात क्या लिखूं, वो फकत खूंखार थोड़ी है। छोड़ दूंगा तेरी गली में भी, छोड़ दूंगा तेरी गली में भी, ये कोई इक्तदार थोड़ी है। छोड़ दूंगा तेरी गली में भी, ये कोई इक्तदार थोड़ी है। उसने भेजा जो लाइक्स में दिल है, इस पे बनता खुमार थोड़ी है। लिखती मैसेज में वरना आई लव यू, लिखती मैसेज में वरना आई लव यू, हार्ट का साइन प्यार थोड़ी है। दिल से देनी है दाद तो दीजिए, वरना हाथ में तलवार थोड़ी है। जमाने के थपेड़े हैं वरना बीवी की मार थोड़ी है। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 200 टन वजनी जो एक जहाज या लॉन्च या आप बड़ी कश्ती कह लें, उसकी जो लागत आती है ना, वो कमो बेश 10-12 लाख डॉलर आती है। वही कश्ती, वही छोटा जहाज जो है वो पाकिस्तान में 2 लाख डॉलर में बन जाता है। यार जुनैद, एक दफा ये को मेरा ख्याल है पिछली हुकूमत में सुना था कि ये जो इशरे वाली नहर है जो लाहौर के अंदर से गुजरती है, इसमें भी कोई, जिस तरह ये मेट्रो शेट्रो चल रही है, इसमें भी कोई जल्लो मोड़ से लेके तो ये ठोकर की तरफ जहां जहां ये नहर जाती है, को ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त हो रहा है वाया नहर, वो बोट शोट कोई चल नहीं है। ये तो सैर फ्री के मकासद के लिए था ना, बाकायदा ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाकायदा एक महकमा बनाया गया था कि दरियाओं के जरिए हम चलाएंगे। दरिया सिंध में यहाँ से लाहौर से शुरू होगी, पंजाब हुकूमत का एक महकमा बनाया गया था। फिर उसी हुकूमत के दौर में आखिरी इजलासों में उसको बंद, बहरी जहाज बन गए थे। अच्छा। वो 30-40 जो थे वो छोटी लॉन्चें और बहरी जहाज हमने खुद बना लिए थे, और फिर वो मेरा ख्याल उनके जाने से पहले ही शायद शहबाज शरीफ साहब, वो फिर हमने नीलाम कर दिया था, वो महकमा भी समेट दिया था। हाँ जी, कुछ तो हमने बनाए खुद भी और कुछ खुद भी बन जाते हैं जहाज। ये अक्सर चौकों में आपने देखे होंगे जहाज बने हुए बैठे होते हैं। अजीजी भाई, दूसरे जहाज तो पानी में चलते हैं और ये वाले जहाज पानी से तबाह हो जाते हैं। इन जहाजों की जो जहाजनेस है वो खत्म हो जाती है, ठंडे पानी के चीजों से होश में आ जाते हैं। नहीं तो ये वैसे हो नहीं सकता, ट्रांसपोर्ट बड़ी अच्छी कई शहरों में चलती है, पूरी दुनिया में चलती है, मतलब जहां पर दुनिया भी। के कई शहरों में, हमारे तो किसी शहर में भी नहीं चलती। लेकिन एक वक्त था कि चला करती थी। आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये अपने दरियाए रावी में छोटे बहरी जहाज चला करते थे। यहाँ से? हाँ जी जनाब। अब तो सिर्फ उधर तोतियां टोंके बंदे ही चल रहे हैं, तो पानी जाएगा रावी। अब क्या चलना रावी में, उधर पानी नहीं चल रहा। अब तो बंदे पैदल नहीं चल सकते। एक वक्त था कि पैदल चलने की भी जगह खुश्क हो गई थी। मैंने एक दफा पहले भी शो में बताया था, उधर अब मच्छियों ने, डड्डुओं ने मोटरसाइकिल ले ली, बाई रोड ही सफर करते। सीरियसली मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक वक्त था शहनशाह अकबर के दौर में, जी। इसी रावी में छोटे बहरी जहाज चला करते थे। अच्छा। और वो जहाज जो थे वो लाहौर के ताजरों का एक नकलो अमल का बड़ा जरिया होते थे सामान का। यहाँ से ठठा तक जहाज आया करते थे, वापस आते थे। एक बड़ी मतलब तजारती मंडी होती थी। तो आप भी चल सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है जिस दरिया में या नहर में पानी है, बिल्कुल यही या चलो किसी वक्त खुश्क भी हो जाए तो ट्रांसपोर्ट बंद हो ही जाती है। इतने लाहौर में एक जुलूस निकले तो मेट्रो बंद हो जाती है। दो जहां पर भी आप बहता हुआ पानी देखते हैं ना, 2 काम तो जरूर हो सकते हैं, बल्कि 3 काम हो सकते हैं। एक तरबूज लेके उसमें बच्चे नहा सकते हैं। 2 सीरियस काम जो हो सकते हैं ना,
वो ये कि बिजली पैदा की जा सकती है और ये कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो चैनल इस्तेमाल किया जाता है। आप छोटे लेवल पे कर लेना, जहाँ पर भी पानी बह रहा है पूरी दुनिया में उसको एक नेमत समझा जाता है कि ये एक एनर्जी का सोर्स है जो खुद ब खुद चल रहा है पानी। आप इसमें कोई भी चीज बहा सकते। सर एक तरफ चल रहा है पानी तो दूसरी तरफ डबल कराया होगा फिर तो वापस आना मुश्किल। यार और ये भी नहीं कि यहाँ पे हम, मेरा ख्याल है कराची में मैंने खुद देखा हुआ 2-3 जगहों पे वो कश्तियां और ये बोट सी बन रही होती है लकड़ी की। यकीन करो पाकिस्तान में इतना जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन बदकिस्मती की इंतहा है कि इतने मतलब करोड़ों डॉलर के हम एक अंदाजे में 30 से 40 करोड़ डॉलर के जहाज या आप कह ले लॉन्चेस जो हैं, कश्तियां जो हैं छोटे, ये ईरान से ऑर्डर आते हैं। अच्छा, फिर और कई अरब मुल्कों से ऑर्डर आते हैं, यूरोप से ऑर्डर आते हैं। यूरोप वाले जो है वो डायरेक्ट नहीं ऑर्डर देते, वो वह दुबई मिडल मैनों के जरिए वो ऑर्डर। तो सर इसकी कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है? नहीं, मुख्तलिफ लोगों को जो ये जद्दी पुश्ती काम कर रहे हैं इनको वाडा कहते हैं। अच्छा। इन लोगों को वाडा कराची में, और वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है बेचारे इंतहाई कि वो बगैर किसी कंप्यूटर डिजाइन के दुनिया की बेहतरीन कश्तियां, बेहतरीन लॉन्चे बना रहे हैं वो लोग। नहीं तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल, इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए। वादा तगड़ा होता है वो वजीर बन जाता है, कश्ती बनाने वालों की हेल्प करें। बिल्कुल हाँ। अच्छा, फिर आप ये देखो कि ये आमतौर पे दुनिया भर में जो कहते हैं ना 200 टन वजनी जो एक जहाज या लॉन्च या आप बड़ी कश्ती कह लें, उसकी जो लागत आती है ना वो कमो बेश 10-12 लाख डॉलर आती है। वही कश्ती, वही छोटा जहाज जो है वो पाकिस्तान में 2 लाख डॉलर में बन जाता है। तो अंदाजा करो। अच्छा, पाकिस्तान में जो बनाने की रफ्तार है वो भी दुनिया भर से तेज है। हाँ जी हाँ जी, मैंने खुद देखा है एक जहाज को सारा खानदान चमड़ा होता है। भाई कितने ने उत्ते तेल ठोकन दे, चाची कितने ने ओ थल्ले रंदा मारन दे, भाई जी खालू नहीं आए ने जनाब वो टिबरियां कसण दे। जी ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਸਰ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨੇ? ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਫੜਾਣ ਦੇ ਉਹ ਭਰਾ ਹੀ ਜੇ ਮੇਰੇ। वाह वाह, अंदाजा करो। मैं उनके फन की तारीफ कर रहा हूँ, उनके हाथों को मेरा बस चले तो चूम लूं और आप लोग उनको जूते लगा रहे हैं। खुदा तारीफ कर रहा हूँ, मैंने खुद देखा है। स्पीड में बता रहा था कि 6 माह के दौरान सिर्फ 20 कारीगर जो है वो 6 माह के दौरान एक बड़ी लॉन्च बना लेते हैं। और ये जो छोटी कश्तियां हैं ये तो कहते हैं कि 20-25 दिन की मार है उनकी। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो रिवायती अंदाज में बनाते हैं, क्योंकि मतलब आमतौर पे एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एल्युमिनियम का इस्तेमाल जो है वो कहा जाता है कि समंदरी पानी के लिए, समुद्री पानी में इस्तेमाल के हवाले से कोई बहुत देर पा चीज नहीं है। लकड़ी ही ऐसी की जाए कि वो पानी में खराब ना हो। उसके लिए आम तौर पे कहा जाता है कि वेल मछली का और खास किस्म कि उनकी जो इस्तेमाल में आने वाली लकड़ी है वो इंतहाई देर पा होती है। इसे वाकई अगर थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, अगर इसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो बड़ी बड़ी वड्डी फैक्ट्रियां लग सकती हैं अपना कराची के अंदर और उससे बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, जिसे हम इंग्लिश में ज़र मुबादला कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज उर्दू में कहते हैं। हमारे ये जो जबरदस्त फनकार है, मैं दानिस्ता तौर पर फनकार का लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये फनकार है, ये आर्टिस्ट है बाकायदा अपने फन। ये लोग जो है ये जो एक लॉन्च बनाते हैं ना वो 4 करोड़ रुपए तक की होती है और हमें पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ इतना ज्यादा काम हो रहा है। और जो उससे बड़े साइज के जहाज है वो 10 करोड़ रुपए तक जाते हैं और जो आम एक कश्ती होती है वो 60 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक जाती है। और ये सारा काम दिन रात वहां पे हो रहा है फिश हार्बर। हमें पता ही नहीं कि हमारे यहाँ कैसे कैसे हीरे छुपे हुए हैं। और फिर इन बोट्स को बेचने के अलावा जैसे हमने शुरू में बात की है कि यहाँ पे इनके साथ बड़ी अच्छी ट्रांसपोर्ट का जरिया बन सकते हैं। यहाँ अगर हमारी लोकल कश्तियां छोटी छोटी बन के बना के हम लोग उधर से खरीद के मुख्तलिफ दरियाओं में, नहरों में छोड़े। हर दूसरे शहर में नहर है, फैसलाबाद में बहुत बड़ी नहर है, बहुत सारा सफर ऐसा है जो हो सकता है उसमें। यहाँ लाहौर में थ्रू आउट पूरे शहर के अंदर से नहर गुजरती है। आप देखो ना जलो मोड़ से अगर कश्ती पे बैठ के कोई सवारी तो जाए इधर को अपना ये ठोकर की तरफ, तो ऐसे जाए वो तो बहुत सारा सफर बच सकता है, बहुत सारा। हाँ, कुछ पुल जो ऐसे बने हुए हैं जिनके नीचे से बोट नहीं गुजर सकती
वो दोबारा से बनाए जाए। दोबारा से बनाए जा सकते हैं। कितनी को देर हमने लगानी है इन कामों के लिए? अक्सर जगहों पे दुनिया में आपने देखा होगा कि जहाँ पे नीचे मतलब पुल है, वो फिर पुल जो है वो एक गेट की तरह से होते हैं। जब बड़ा जहाज आता है तो वो गेट की तरह खोल दिया जाता है और वापस आ जाता है। मतलब कई कुछ किया जा सकता है, आपकी करने की नीयत होना जरूरी है। हाँ जी, फिर इसके साथ मैं कहता हूँ कि गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम बहुत बिल्कुल बिल्कुल। आप सामान बहुत ज्यादा उसमें लाद के इधर से उधर लेके जाओ। कम से कम इस इंडस्ट्री, अगर इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया जाए, आप अपना उसको साथ कल्चरल टच भी रखें, जो आपका बहरहाल आपकी मिरास है एक तरह से, वो भी उसको इंटैक्ट रखें, तो ये 3 से 4 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। 3 से 4 अरब डॉलर का जरूर यार 4 अरब एक पासे रह गया। ये हमारे चैनल से कितनी दूर है नहर? इथों ਅਸੀਂ पैदल अगर ले गए तो उथों कश्ती ते गोगा लद के घर छड़ गए तो चैनल का कितना पेट्रोल बचेगा। गोगे वाली कश्ती जो है वो दरिया नहीं उठा सकता, उसके नीचे समंदर का होना जरूरी है। तुम नहीं बात कर रहे, मेरे ख्याल पानी से डरते हो तुम। डरता क्यों है? कभी देखो तुम इसे तैरते हुए, ऐसे एकदम फटाफट निकल जाए। बाकी सीरियसली बहुत सा काम हो सकता है और आप अपने सड़कों के ऊपर से बड़ी ट्रैफिक कम कर सकते हैं। ये ट्रैफिक को कम करने के लिए या उसको सुधारने के लिए, उसकी शक्ल ठीक करने के लिए इस तरह के काम पूरी दुनिया में होते हैं जो हमें नहीं अकल आ रही है। नहीं, ये जो तुम इतना काम कह रहे हो, गोगे को दरिया रावी के स्पुर्द कर दें तो धरती से बहुत बोझ कम हो सकता है। यार तुम उसे फेंकने की तजवीज यार मैं हवाले करने की क्या, गोगे को कभी नहर पे ले जाते हैं, कभी दरिया पे, जिन्ना देखा देते क्यों नहीं? दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यही मैं कहना ये देखिए, अब आप मेरी नकल उतार रहे हैं। आप जो ये कर रहे थे वो क्या था? क्या हो गया? चले मलिक साहब, इनके मुंह को जाने दें, इनके मुंह को। इनके मुंह पर तो सीधा सीधा झगड़ा होता है भाई। नाज़रीन, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं 24 घंटे टीवी देखने के मर्ज में मुब्तला मरीज नाजिर मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये थोड़ा तौहीन नहीं हो गई हमारी? नहीं, आदत अगर हद से तजावुज कर जाए तो वो फिर मर्ज ही बन जाता है। देखिए आप तो माशाल्लाह टेलीविजन के आदमी हैं, आपको तो दाद देनी चाहिए कि कोई आदमी 24 घंटे टीवी देखता है। आप उसको मर्ज और हमें आप दायमी मरीज कह रही हैं। एक खूबसूरत तवाज़ुन हर चीज में अच्छा लगता है। टीवी देखने में भी एक तवाज़ुन होता भाई मेरे दोस्त कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए ना। आप तो टेलीविजन को बाकायदा चंबल की बीमारी पेश कर रहे हैं। आप जानती है कि टेलीविजन हमारा ओढ़ना बिछोना, जागना सोना, उठना बैठना, खेल खिलौना है। मलिक साहब, आप इसलिए बैठ के सारा दिन टीवी देखना अफोर्ड कर लेते हैं कि 10 आपके मकान किराए पे चढ़े हुए हैं, किराए खाते हैं बैठ के आराम से। इसमें कौन सी कोई शिकायत वाली बात है? हर आदमी के जिंदगी गुजारने का एक पैटर्न होता है, एक तरीकाकार होता है, एक स्टाइल होता है। हम टेलीविजन देखने के बाहर नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी हर चीज में एक तवाज़ुन भी होना जरूरी है। ये देखिए, ये तो आप हमें तंज कर रहे हैं, ये बार बार ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन कहना ये चाह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम घर बैठ के अपनी सिकाफत को बहुत लाइक कर रहे होते हैं। टेलीविजन जब देख रहे होते हैं, पाकिस्तानी चैनल देख रहे होते हैं, तो बड़ा फख्र महसूस कर रहे होते हैं कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो अल्लाह ताला के फजलो करम से अब बहुत पसंद किए जाने लगे। मगर भाई उसमें अगर कोई गड़बड़ नजर आती है तो हम आज चले आते हैं यहाँ आपके पास। अरे वाह, क्योंकि आप हमारी आवाज हुकाम वाला तक भी पहुंचा दिए हैं और ये टेलीविजन के लोगों तक भी पहुंचा देती है, इसलिए आपको तकलीफ दिए देती है। अगर कहते तो उठ के चली जाती। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जब आपने कोई तारीफ और तौसीफ करनी होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तब भी तशरीफ ला के बात किया करें ना, सिर्फ तनकीद ही करते हैं। भाई इससे ज्यादा क्या तारीफ हो सकती है कि हम खुद कहती है कि हम 24 घंटे टेलीविजन देखते हैं। सोने वाले अगर चंद घंटे बीच में से निकाल दिए जाए तो यकीन मानिए बिस्तर से उठ के सीधा हम टेलीविजन के आगे गिरते हैं और वहां से उठ के सीधा बिस्तर पे गिरती है। भाई अब तो आलम ये हो गया है कि ड्रामे के किरदार टीवी के अंदर से इनको देख के ना कहीं देख रहे, कहते हैं ठहर जा पहले इसको जाने तो फिर बात करते हैं।
अगर आपका इरादा पाकिस्तान के टेलीविजन के व्यूअर की तस्दीक करना ही है तो फिर बता दीजिए। नहीं मैं तस्दीक नहीं कर रहा। अच्छा आप इरशाद फरमाइए। इरशाद क्या भाई, अर्ज करने के लिए आए, आप अर्ज भी नहीं सुन रहे। नहीं आप कह रहे टीवी के आगे गिरते हैं, उधर भी गिरते हैं, क्या गिट्टे निकले हैं आपके? भाई बात कहने की ये करना चाह रहे हैं आप गौर में, आप तो माशाल्लाह हुलिये से ही पढ़े लिखे आदमी लगते हैं। सही बताएं। हाँ, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम टेलीविजन के बेहद शौकीन हैं जी बाबा, हम आशिक हैं टेलीविजन। वाह जी वाह। कहना ये चाह रहे हैं, कहने के लिए ये हाजिर हुए हैं कि भाई जो ड्रामे चल रहे हैं उनमें अगर थोड़ी सी एक गड़बड़ नजर आ रही है तो वो खुदा के लिए उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। गड़बड़ ये नजर आ रही है कि अदब व आदाब जो माशरे के या एक खानदान के दरमियान अफराद में होना चाहिए, अदब व आदाब, वाह रे वाह, उसको हम मलियामेट कर रहे हैं ड्रामों के जरिए। जबरदस्त। हम क्या करते हैं कि टेलीविजन के ड्रामे में बेटे को खड़ा कर देते हैं बाप के सामने और उसकी आंखों में आंखें डाल के हम ये साबित करना चाह रहे होते हैं कि बाप जो है ये वो ओल्ड फैशन है, ये बाप जो है ये पुराना है, ये बाप जो है ये बेचारा एक पुराने ख्यालात का आदमी है, इसलिए ये अब बेकार है, इसकी बात भी ना सुनी जाए ना ही इसकी बात पे अमल किया जाए। तो कैसा अमल करवाए? देखिए, अरे भाई आप इसी पे लगे हुए हैं, इसको बांध दो यार। वाह रे वाह। बात सुनो हमारी, हम कहना ये चाह रहे हैं कि बाप और बेटे को सामने आमने खड़ा करके ये साबित मत कीजिए कि बाप जो है वो एक बेकार और ओल्ड फैशन आदमी है। बेटी को माँ के सामने खड़ा करके उसकी आंखों में आंखें डाल के ऐसे डायलॉग बेटी से मत बुलवाइए कि वो ये साबित करना शुरू कर दे अपनी कौम की बेटियों बहनों और बच्चों को कि माँ जो है इसे अकल नहीं है। बहुत प्यारी बात। हम अपनी मर्जी करेंगे क्योंकि हम जदीद दौर के बच्चे। ये जो अदब आदाब और हिफ्ज़ मरातब है यही तो हमारे माशरे का वो लोशन या सोल्यूशन है जो रिश्तों को आपस में जोड़ता है। हाँ, यही मैं कहना ये चाह रहा देखिए अब आप मेरी नकल उतार रहे हैं। हूं। आप जो ये कर रहे थे वो क्या था? क्या हो गया? चले मलिक साहब इनके मुंह को जाने दें, इनके मुंह को। इनके मुंह पर तो सीधा सीधा झगड़ा होता है भाई। ऐसा आदमी तो किसी खुशी पे चला जाए तो लड़के वाले और लड़की वाले लड़ पड़ते हैं। ये जो मसला लेके आए हैं ये सही, बिल्कुल सही। बाप बाप होता है। चाहे ऐसा क्यों ना हो, उसका भी रोब होता है घर में। और भाई बात मजाक में मत डालो यार। देखो मलिक साहब ने कितना खूबसूरत पहलू उजागर किया है। अल्लाह की खैर करे। कहना ये चाह रहे हैं जब बाप बेटा डायलॉग बोल रहे होते हैं, अब आमने सामने खड़े हो गए और बेटा जब बाप को कंजर्वेटिव साबित करना चाह रहा होता है तो बेटे के डायलॉग में बाकायदा राइटर जान डालता है और बाप को इंतहाई कमजोर और वो क्या उसे कहते हैं, लागर, मजबूर, लागर, फीके 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 आप लोगों की जुबान में फीके फीके डायलॉग लिखे होते हैं बाप के, ताकि बेटा जो है वो चढ़ के रहे जरा। इसी तरह जब माँ बेटी के डायलॉग चल रहे होते हैं तो बेटी बार बार कह रही होती है मेरी मर्जी, मेरे जिंदगी, मेरे ख्यालात, बाहर में गए ऐसे ख्यालात जो माशरे की खूबसूरती को बर्बाद कर रही है, जो मजहबी हवाले से हमें शर्मिंदा कर रही है। जी मलिक साहब आप ठीक फरमा रहे हैं, मैं खुद टेलीविजन में काम करता हूँ। क्यों बकवास कर रहे हैं? इतना बड़ा टेलीविजन तो हमने देखा ही नहीं। क्या हो गया? आप अगर ये कहें कि मैं गोदाम में काम करता हूँ मान सकते हैं। आप अगर कहें कि मैं शाही कले में काम करता हूँ तो हम मान सकते हैं। आप अगर कहें कि मैं चिड़ियाघर के हाथी वाले कमरे में काम करता हूँ तो हम मान सकते हैं। ना कहो कि मैं गलत काम करना वो उसी मान सकने। बिल्कुल ठीक है। टेलीविजन में आप कैसे काम कर सकते हैं? ओहो मलिक साहब 56 इंच की LCD आ गई है। तो आपने कभी अपने आप को मापा है? खुद नहीं माप सकते तो कोई दर्जी बुलाइए 2-3। 56 की LCD है। 1 इंच किसी दिन भी हल्का सा हिले तो टेलीविजन फट जाएगा।
ये 55 फुट के LCD 56 इंच की होती है। अरे मियाँ इतना बड़ा धोखा। मियाँ कहना ये चाह रहे हैं कि जब बेटे के डायलॉग बाप के सामने खड़ा करके आप जानदार लिखेंगे और बाप के डायलॉग कमजोर लिखेंगे तो ऑब्वियसली जो देखने वाले लोग हैं उनके जहनों पे जो जानदार डायलॉग हैं वही नक्श होंगे। इसलिए खुदा के वास्ते बुजुर्गों की इज्जत और उनका वकार कायम रखने के लिए अपने लिखने वालों से कहिए कि अपने मुआशरे की अपनी सकाफत की खूबसूरती को मजरू मत कीजिए। यही कहने के लिए हम आ जाए थे। अब मंगवा लीजिए वो चाय के साथ वो मुरब्बे वाला केक। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। कोई शख्स, कोई हमारा दोस्त, अगर कोई हमारा बहन भाई गाड़ी ले लेता है अच्छी, जी जी, तो वो लाजमन किसी छोटी या पुरानी गाड़ी वाले को ये जरूर कहता है कि यार कब ले रहे हो, तुम भी बदल लो गाड़ी। गाड़ी बदल लो। तुम्हारे भाई ने तो नहीं ले ली। अच्छा यार, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे पाकिस्तान में खास तौर पे मैं ये देखता हूँ, जी जी, अब ये बीमारी गांव में भी पहुंच गई हुई है, जिसे हम स्टेटस को कहते हैं। बहुत ज्यादा फैल गई है। और अब तो मैं देखता हूं कि ये अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ऐसे फील होना शुरू हो गया कि यार ऐसे सारे ही नवे नवे अमीर हुए हैं। क्यों हम इस तरह कर रहे हैं? मैं कई दफा बड़ा हैरान होता हूँ, बड़ी परेशानी होती है कि ये क्यों ऐसी हालत हो गई हुई है। लोग क्यों एकदम मुंह फाड़ के इस तरह की बात कर देते हैं। हाँ जी। मसलन कोई शख्स, कोई हमारा दोस्त, अगर कोई हमारा बहन भाई गाड़ी ले लेता है अच्छी, जी जी, तो वो लाजमन किसी छोटी या पुरानी गाड़ी वाले को ये जरूर कहता है कि यार कब ले रहे हो, तुम भी बदल लो गाड़ी। गाड़ी बदल लो। तुम्हारे भाई ने तो नहीं ले ली। जाए राम नाल ते भाई दी गड्डी ते हिट मार के। तुम्हें अल्लाह और दे, अल्लाह पाक और दे। कहता हूँ कि इस तरह की बात करके दूसरे की दिल आजारी दिल नहीं, बहुत अच्छी, हाँ दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप किसी शादी ब्याह पे चले जाएं, हाँ, लाजमन वहां पे आपको खवातीन नजर आएंगी जो पूछती हैं ये किस ब्रांड का है। हाँ जी, ब्रांड का। अब आप एक दो खवातीन खड़ी होके अगर आपस में ब्रांड डिस्कस कर रही हैं हाँ, तो शायद कोई पास ऐसी भी हो जिसकी पहुंच ब्रांड ब्रांड तक नहीं, जिसने खाला सकीना से सूट सिलाया हुआ है। अब ना उसकी दिलाजारी हाँ। फिर घर शिफ्ट करते हैं कई लोग, अगर किसी बड़े घर में चले जाते हैं या किसी अच्छे सोसाइटी में चले जाते हैं तो लाजमन किसी अपने रिश्तेदार बहन भाई को कहते हैं कि तुम कब मूव कर रहे हो, अब घर छोटा हो गया, बच्चे बड़े हो रहे हैं। यारो आपे ओदे बच्चे बड़े हुए ने तो किधरे समा जान के तुम क्यों, तुम अल्लाह तुम्हें और दे, तुम चले गए हो तो उसको अपना बंदोबस्त करने दो। क्यों इस तरह की बात कर रहे हो कि वो बेचारा सारी रात पलसेटे मारदा रहे। शफीक है की गल कह रही गल तो ठीक है। शफीक नहीं, देखो शफीक ने जेड़ा कर लिया ना उन्हें लिया रिश्वत नाल ते मैनू भी लेनी चाहिए सी। मैं क्यों नहीं ली? मैनू अच्छी वाली मिल रही सी, मिल रही सी। हालांकि मिल ही नहीं रही हो उसको, अगर वक्त पे मिल रही होती तो वो जरूर लेता। नहीं यार, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोजा रखा हुआ है, जो बड़े प्यारे हैं। आप उन लोगों की दिलाजारी ना करें। आप एक दूसरे का इन छोटी छोटी चीजों में ख्याल करें। असल में ये जो है ना जिस स्टेटस को वाला मामला, हाँ जी, इसको हमारे सोशल मीडिया ने, चैनल्स ने, हमारे ड्रामों ने बड़ा ये फैलाया है, बढ़ावा दिया है। हम लोग हो ऐसी ऐसी हम गप और ऐसा ऐसा बेवकूफाना पोस्ट हाँ फेंक जी। रहे होते हैं कि मैं देख के कहता हूँ कि यार खुदा दा वास्ता जे तुसी टिंडियां च गोश्त पा ही लिया है तो उसको सोशल मीडिया पे फेंकने की क्या जरूरत है? टिंडियां दे शोरबे ते दाग ही ना लग जाए खुदा जी। ऐसे ऐसे बंदे भी हैं जो सोशल मीडिया पे मोबाइल से ना किसी ऐसी कोरमे की पोस्ट देख के ऐसे अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप स्टेटस को लानत कर ऐसे भाई ने साडा शो नहीं सीरियस रहे सीरियस पोर्शन इसका था। पोर्शन को गोली मारो, मैंने अपनी तो मैं ये बता रहा हूँ ना, आंखों देखा मंजर है। बकायदा एक सीरियस पोस्ट देख के पहले ऐसे किए और फिर बाद में मेख निकाल मोबाइल है यार, जाने दो, गोगे ने बीफ का मोबाइल रखा हो, मेख निकाल रहा है उसकी।
गंगा जी आई एम सॉरी यार, मैं तो तेनों ये कह के ले आया सा कि बड़ा संजीदा आदमी, नो प्रॉब्लम। मैंने धक्के से उसे छेड़ रहा है बेचारे को, मेख वेखियां कि नहीं देर हो वो तो हुण सिर्फ यही कहता कि डॉक्टर साहब इतने मेख ते सट वजी है। तो वही बात कर रहे जो पाछबी ने की थी। वो एक म्यूजिशियन उस्ताद हुए हैं बहुत बड़े पाछबी, उन्होंने ये अपना पोर्शन घर में ऊंचा कर लिया ना, तो बाकी सारे भाई बैठे हुए थे नीचे। उन्होंने अपनी तीसरी मंजिल की छत से नीचे मुंह करके उनका कहा, ओए अब मंजिया चौके अंदर ले जाओ, थले उत्ते झाती पैंदी। ये पहली चाहती है जो नीचे से ऊपर पड़ती है। देखो पाछबी दी चाहती और भोला जी अल्लाह बख्शे नीचे से बोल रहे हैं कि भाई जी को साथ रबटी चाहती है, थले होते टोर जड़ी। तो बात ये है कि इस तरह की चीजों से दिल आजारी होती है। ये एक बहुत ज्यादा चलता है कि किसी की आप सालगिरह पे चले जाएं तो वो लाजमन अपने तोहफे तोहफे इकट्ठे करके तो खातून को या भाई साहब को जरूर पूछेंगे आपने शादी पे क्या गिफ्ट किया था, आपको क्या गिफ्ट मिला था। उन्हें दिल करे बेचारी नूं लामा मिले आप तो तोहफा दे के टुर जाना, उन्होंने घर लड़ाई पुआई। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को हमें भूलना चाहिए, छोड़ना चाहिए। हमें बड़ी एहतियात के साथ, ये बड़ी छोटी सी जिंदगी है और इंसान का दिल जो है ये बड़ा सेंसिटिव, बड़ा नरम सा होता है। हाँ जी। इसको ख्याल करें, टूटने Avoid ना करें, दें हाँ। इसे, दिल ना टूटने दें किसी का, खुदा के लिए। इन चीजों से अब हमें निकलना चाहिए, अब हमें कहीं और तरफ चलना चाहिए। हमें 74 साल हो गए हैं आए हुए अपने घरों में बसते हुए। हाँ जी। अब हमें ये जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग चल फिर रहे हैं हमें उनका भी मोराल अप रखना है। तुम यकीन करो ये मर्ज यहाँ तक हमारी सोसाइटी में बढ़ गया कि मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, उसने बताया, जिक्र किया कि अपने बच्चों का उसने स्कूल तब्दील कर दिया। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे तो बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे स्कूल में। वो जरा नीम सरकारी टाइप स्कूल था लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी वहां पे। कहते यकीन करें मैंने सिर्फ लोगों के तानों से तंग आके बच्चों का स्कूल चेंज किया है। मेरी औकात वसात से बाहर है ये प्राइवेट स्कूल, लेकिन लोग आके पहला सवाल ही ये करते थे कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? अच्छा फलां स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे तो फलां स्कूल में पढ़ते हैं, किसी अच्छे स्कूल का नाम नहीं, ये बड़ी ही अजीब सी हमारी आदत बनती जा रही है। हमें इससे बाहर आना चाहिए। हमें अल्लाह ताला की जात से डरना चाहिए। अल्लाह पाक बहुत ताकतवर है, अल्लाह पाक की पकड़ बहुत ही मजबूत है। खुदा रहा इन बातों को छोड़ें, लोगों की, बहन भाइयों की, अपने इर्द गिर्द अपने दोस्त अहबाब की दिलाजारी से परहेज करें। ये स्टेटस को से निकले। ये बेचारे मेरे जैसे मस्कीन जो है ना, जो इस तरह की बातें सोच रहे होते हैं, उन्हें ये भूलना चाहिए। ऐसा नहीं कर। जुल्फी ये बात समझ आ गई या दोबारा करें सेगमेंट? यार गौरी तुम उसके कुलीग दानिश्वर हो या उसके अबे हो? इनकी जगह चेंज कर देनी चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहाल और आज की छोटी सी बात ये कि कामयाब इंसान कभी भी तारीफ के नतीजे में फूलता नहीं और तनकीद के नतीजे में टूटता नहीं। बहुत आला। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।